Okay, so I am on NCRT textbook, page number. This is page number 41 of NCRT textbook. 41, let me write it properly. Okay, so that's page number 41 and I'm solving example 3.3. Now, if you look at the example, what is written here, you have to calculate the number of moles. So what do you have to calculate? Number of moles for the following. The first one in the list is 52 grams of helium. 52 grams of helium, and you have to finding mole from the mass. So see what is given, atomic mass is given. Why do I say atomic mass? Because helium is a monoatomic element. So when I say helium, it is consisting of only one atom. So I have 52 gram of helium. I need to find out number of moles. Very simple formula. Number of moles is equal to atomic mass. Because it is atom, I am writing atomic mass. Had it been water or HNO3 or something like that, I would have written molecule. है ना? So this will be atomic mass upon, sorry, it would be given mass upon atomic mass. I'm sorry. So this will be given mass upon atomic mass. अब काफी सारी एग्जाम्स में एटॉमिक मास दिया रहेगा. यू डोंट हैव टू लर्न ऑल ऑफ देम, although we have learned few of them. So what is given mass? Given mass is 52. Atomic mass of helium, atomic mass of helium is 4. दिया रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में दिया होगा एटॉमिक मास. सो डिवाइडेड बाय 4. क्या आंसर आएगा आपका? आपका आंसर आएगा 13 मोल्स. क्लियर है? Is it clear? Yes, ma'am. Second question that is asked is 12.044 into 10 raised to 23 number of helium atoms. क्या दिया है आपको? 12.044 into 10 raised to 23 helium atoms आपको दिए हुए हैं. And you have to find out that makes how many moles. So again, very simple formula. Number of moles, find क्या करना है आपको? Number of moles equal to given number of atoms. In this case, it will be atoms. So given number of atoms. अगर molecules होगा molecules लिखेंगे, ions होगा ions लिखेंगे, whatever particle is given. Upon, क्योंकि ये number है, यहाँ पे आप लिखेंगे Avogadro number. So what is the number given here? Number given here is 12.044 into 10 raised to 23. Avogadro number कितना है? Avogadro number है 6.022 into 10 raised to 23. Very simple calculation. आपको number देख के पता चल जाना चाहिए. 6 2s are 12. 2 2s are 4, 2 2s are 4. So basically अगर आप 6.022 को 2 से multiply करोगे, you will get this given number, that is 12.044. So this is 2 moles. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 moles आ जाएगा. Clear है? Is this clear? Yes, ma'am. Do you want to copy it? No, ma'am, I've written. We have already done it, right? Okay, so in that case, we can go to the next question. Let me read the next question from the textbook. Okay. Calculate the mass of the following. अभी हमने calculate किया था number of moles. अभी हमको क्या calculate करना है? हमको calculate करना है mass. I am on example 3.4 NCRT textbook. Okay.
What is given? The first question given here is 0.5 mole of nitrogen gas. So 0.5 mole of नाइट्रोजन गैस इज गिवन. अब सबसे पहले फॉर्मूला देख के मुझे ये बताओ कि ये मॉलिक्यूल है या एटम है. व्हाट इज इट? N2 मतलब मॉलिक्यूल हुआ या एटम हुआ? Molecule. This is molecule. It's a diatomic molecule. Diatomic. One molecule of nitrogen gas contains two atoms. हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है मास. सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है. फॉर्मूला क्या था हमारा? हमारा फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है हम यहाँ क्या लिखेंगे? मोलर मास. अगर ये एटम होता तो हम क्या लिखते? एटॉमिक मास. तो सबसे पहले मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा ना. सो लेट अस फाइंड मोलर मास हियर. मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 2 है एटम्स, तो 2 इंटू atomic mass of nitrogen. So that comes to atomic mass of nitrogen. लर्न होना चाहिए, सबको दिया रहेगा लेकिन फिर भी लर्न कर लो तो अच्छा है. So atomic mass of nitrogen कितना है? 14. So this will be 14 and this becomes 28. Okay. Now तो नंबर ऑफ मोल्स देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलरेडी गिवन. ठीक है. ये जो मैंने वेट लिखा है इसको आप वेट भी लिख सकते हो, मास भी लिख सकते हो. एक्चुअली physics point of view mass is a better term than weight, because when I say weight it becomes gravitational force. तो mass लिखना बेहतर रहेगा. Okay, so number of moles is already given 0.5. वेट या तो मास हमको फाइंड करना था. मोलर मास मैंने फाइंड किया 28 है, तो मास कितना होगा? मास विल बी 0.5 इंटू 28. 0.5 कैन बी रिटन एज 1/2. सो दिस बिकम्स 14. तो मास कितना हो गया आपका? मास हो गया 14 ग्राम्स. यूनिट क्या आएगा? 14 ग्राम्स. इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस लिया, उसके अंदर 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस होगा. क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. You want to copy or I can go to the next sum? Ma'am, I've already written. Okay. The next one is, so same example 3.4 उसका सेकेंड पार्ट. 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम. अब इसमें डिफरेंस देखेंगे. ये है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, नॉट मॉलिक्यूल, इट इज एटम. सेम फॉर्मूला लगाएंगे. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास, दैट इज गिवन मास, अपॉन, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास लिखेंगे. मोलर मास नहीं लिखेंगे क्योंकि दिस इज एटम. तो अब ये हो जाएगा 0.5 इज द नंबर ऑफ मोल विच इज गिवन. मास हमको फाइंड करना है. एटॉमिक मास इसका रहेगा 14. तो देयरफॉर मास कितना हो गया? देखो ये ऑलमोस्ट 50% हो गया. सो दिस बिकम्स 0.5 इंटू 15, half, sorry 14, half into 14, that is 7. तो कैन यू सी द डिफरेंस? अगर मैंने 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिया, इट इज वेइंग 14 ग्राम्स. लेकिन अगर मैंने 0.5 मोल ऑफ एटम लिया, इट इज वेइंग 7 ग्राम्स. क्लियर है? Yes, ma'am. आई कैन क्लियर द स्क्रीन. Yes, ma'am. Third one, again, where am I writing? Example 3.4 का third part. Okay.
3.011. So what is the number given here? 3.011 into 10 raised to 23 atoms of नाइट्रोजन. सो दिस इज नाइट्रोजन एटम्स. अगर आपको 3.001 इंटू 10 रेज टू 23 नाइट्रोजन एटम्स दिए हैं तो उसका मास कितना होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू नो नंबर ऑफ मोल्स, तो ही मैं फाइंड कर सकती हूँ. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इससे मुझे पहले मोल्स फाइंड करना है और मोल से मुझे मास फाइंड करना है. सो द फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स. कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स? सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू given number of particles. I can say here it is given number of atoms upon Avogadro number. So what is the given number of atoms? Given number of atom is 3.011 into 10 raised to 23 divided by what is Avogadro number? 6.022 into 10 raised to 23. अगेन नंबर देख के थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए. 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2. तो ये क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए. सो व्हाट डू आई गेट? आई गॉट हाफ. फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.5. तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स कितना मिल गया है? मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल गया है 0.5. फाइंड क्या करना है मुझे? मास फाइंड करना है. मास कैसे फाइंड करेंगे? क्या था हमारा फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन, इन दिस केस एटॉमिक मास. मॉलिक्यूल होता तो मोलर मास. सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज. सो देयरफॉर 0.5 इज इक्वल टू मास अपॉन, वी नो एटॉमिक मास कितना है नाइट्रोजन का? एटॉमिक मास नाइट्रोजन का है 14. सो देयरफॉर मास इज इक्वल टू 0.5 into 14, that's half into 14 and that is 7. तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा ग्राम. सो इट मीन्स दैट अगर मैंने 3.011 इंटू 10 रेज टू 23 नाइट्रोजन एटम्स लिए, उसका मास कितना होगा? इट विल वे 7.7 ग्राम्स. क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके. कैन आई क्लियर द स्क्रीन? Yes, ma'am. Okay. The fourth one देखेंगे. सेम, दिस इज एग्जाम्पल 3.4 और उसका फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट. 6.022 into 10 raised to 23. 6.022 into 10 raised to 23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आर गिवन टू यू. अगर आपको इतने मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो उसका मास कितना होगा? अगेन सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे. कैसे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स, या तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आई शुड से. आई हैव नॉट रिटन अ करेक्ट स्टेटमेंट. चेंज कर देते हैं इसको. So I should write given number of particles. Okay. Given number of particles divided by Avogadro number. So that comes to 6.022 into 10 raised to 23 upon same number, because ये जो number दिया है this is nothing but Avogadro number. So your answer is 1. तो number of moles कितना मिला? 1 मिला. अब next formula क्या है? Number of moles
इज इक्वल टू मास अपॉन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे या मोलर मास लिखेंगे, क्या लिखना चाहिए हमको, व्हाट शुड बी राइट? Molar mass. Molar mass, because nitrogen is a molecule and we already know that molar mass is 28. अभी कैलकुलेट किया था हमने. So 1 is equal to mass upon 28. Therefore mass is equal to 28 grams. तो देखो ये कितना क्लियर है ना. अगर हमने 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिया तो 28 ग्राम्स. अगर हमने 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम लिया तो कितना मिलेगा, 14 ग्राम्स मिलेगा. क्लियर है? Yes, ma'am. स्क्रीन क्लियर कर दो. Yes, ma'am. Okay. Next example. So this is example 3.5. Okay. Calculate the number of particles. अभी हमको क्या calculate करना है? अभी हमको calculate करना है number of particles. कहाँ पे? So question number 1 is 46 grams of sodium atoms. 46 grams of सोडियम एटम्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करना है. क्या करेंगे, चलो फॉर्मूला बताओ फटाफट से, अभी तो बहुत बार हो गया फॉर्मूला. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एटम. यहाँ पे एटम है सो एटॉमिक मास. सो व्हाट डू आई हैव, दैट इज इक्वल टू, ओके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही करना है ना, तो अभी मुझे देयरफॉर नहीं लगाना था यहाँ पे, वेट. ओके सो दैट इज इक्वल टू, मास कितना दिया है 46, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम लर्न करके रखो, इट इज 23. सो व्हाट डू यू गेट, यू गेट 2 मोल्स. अभी मुझे क्या मिला, अभी मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिला है, मुझे फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इन दिस केस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज एटम. सो व्हाट डू आई गेट, सो आई शुड से 1 मोल is Avogadro number, which is 6.022 into 10 raised to 23. So 2 moles is how much? Unitary method लगाएंगे. It is equal to 6.022 into 10 raised to 23 into 2. So that comes to 12.044. 6 2s are 12, 0 2s are 0, 2 2s are 4 and 2 2s are 4 into 10 raised to 23. एंड बिकॉज ये नंबर है इसमें कोई यूनिट नहीं आएगा. तो अगर मैंने 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स लिया, उसमें कितने सोडियम एटम्स होंगे मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है. विदाउट काउंटिंग आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि उसमें 12.044 इंटू 10 रेज टू 23 एटम्स होंगे. क्लियर है दीवा? Yes, ma'am. यू वांट टू कॉपी? No, ma'am, I've written. Okay, great. Next question, sub question of the same thing. So I am at example, where am I writing? I am at example 3.5 and this is 3.5 ka 2. Okay. 8 grams of oxygen molecule. 8 grams of oxygen मॉलिक्यूल का हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना पड़ेगा एंड नंबर ऑफ मोल्स से हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सेम एक्सरसाइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास upon atom या molecule. In this case it is molecule, so molar mass, so that is equal to 8 upon, now I need to find out molar mass of oxygen first, and for that what should I do, because ये diatomic molecule है, एक molecule में 2 oxygen atom है, तो 2 into atomic mass of
oxygen. So that is equal to 2 into 16 and that's equal to 32. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 32. ओके, अब ये जो 32 है डिवाइड करके क्या आंसर मिलेगा मुझे बताओ. व्हाट विल यू गेट वीवा? 1/4. सो यू गेट 1/4. अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 0.25. I can convert it into fraction or I can leave it as it is because ultimately मुझे number of moles नहीं ढूंढना है. Question क्या है? Number of particles. So now number of particles, in this case the particles are oxygen molecule, not atoms, molecules. So in this case it is oxygen molecule. So oxygen, number of oxygen molecules is equal to 1/4 into what should I multiply? I should multiply Avogadro number, that is nothing but 6.022 into 10 raised to 23. So what will I do? I will divide 6.022 by 4. So 6022, अभी मैं डेसिमल को इग्नोर कर रही हूँ. What do I get? कैलकुलेशंस हाथ से करने हैं, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है. So this is, sorry, and I should put one decimal here. So again what do I get? I get 5. So 20. Again I get 5. तो ये रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा, राइट? दिस विल बी 15 पॉइंट. मैंने एक जीरो मिस किया है क्या? Have I missed a zero here? Let's do this. No, ma'am. It is 15.55 only. Let us do it. Ma'am, it's 1.51 into 10 raised to. No, I see in the textbook, I see an additional zero. एक बार और ट्राई कर लेते हैं, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी. चलो फटाफट करेंगे. So again let us divide this. 6022 divided by 4. So 4 ones are 4. 4 fives are 20. Yes. And then, yeah, I have to put a zero here. Then I can bring down this 2. So this will be point and 0. And now I can get one more 2. So this will be 5s are 20. And then it's a recurring decimal. तो यहाँ पे देखो मैंने ये वाला डेसिमल इग्नोर किया था ना, तो ये जो 15 पॉइंट है उसको मुझे क्या लिखना चाहिए? 1 पॉइंट. So what I get is 1.505 into 10 raised to 23. सिर्फ 3 डेसिमल काफी है, वैसे तो 2 ही काफी है. तो what is the number of oxygen molecule? It is 1.505 into 10 raised to 23 molecules of oxygen होंगे किसमें? 8 ग्राम of oxygen में. क्लियर है दीवा? Yes, ma'am. कॉपी कर लिया आपने कि करना है? No, ma'am, I've written. You can also round it off. Round off में क्या करेंगे? Since this is 5, I can write this as 1.51 into 10 raised to 23. That is rounding off and getting the answer in 2 digits. That also can be done. Okay. The last one over here. So this is 3.5 का 3. 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स दिया है आपको. कितना दिया है? 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स. आपको फाइंड करना है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे. सो सेम थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी डू?
इसमें से हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो यूनिटरी मेथड से भी काम बन जाएगा। 1 मोल इज हाउ मच, एवोगैड्रो नंबर। तो 0.1 मोल इज हाउ मच, so that will be 6.022 into 10 raised to 23 into 0.1. So that is nothing but 6.022 into 10 raised to 23 into 1 upon 10. ये 10 को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। So 6.022 into 10 raised to 22 is the answer. अगर हमने 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स लिया तो उसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे, 6.022 into 10 raised to 22. क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, as I'm going to update this on the YouTube channel, those who are watching, the students, those who are watching, take a pause and note down the sums. Do it yourself, only then you will understand. Otherwise, you won't understand, and do all the calculations yourself. Bina calculator ke sare calculations karo. Okay, let us go to the in-text questions. So now I'm solving in-text question on page number 42. This is question number 1. If 1 mole of carbon atom weighs 12 grams, what is given? 1 mole of carbon atom is weighing 12 grams. We know that. What is the mass of 1 atom of carbon? आपको क्या find करना है? Mass of 1 atom of carbon, ये फाइंड करना है आपको। तो 1 मोल मतलब कितने, नंबर से एसोसिएट करो उसको। 1 मोल is Avogadro number, that is 6.022 into 10 raised to 23. So I can say 6.022 into 10 raised to 23 कार्बन एटम्स अगर लिए तो उसका वेट है 12 ग्राम्स। ओके, तो इतना क्लियर है। 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 इज 12 ग्राम। तो 1 एटम कितना होगा, 1 एटम का मास कितना होगा? हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड, 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू 23। नाउ दिस कैलकुलेशन इज स्लाइटली ट्रिकी, बहुत आराम से करेंगे इसको। कैसे करेंगे, पहले 10 रेज टू 23 को हम लोग न्यूमरेटर में ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 रेज टू -23 इंटू 12 डिवाइडेड बाय, इसका अभी हम डेसिमल निकाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6022। अगेन इफ आई डिवाइड दिस बाय, इसको मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। So this can be written as 10 raised to -23 into 12 divided by 6022। ये जो 1000 है इसको हम क्या करेंगे, अब पहले इसका हम इनवर्स ले लेते हैं। ओके, so this can be written as this can be written as 12 into 1000 divided by 6022। ये 1000 मतलब 10 रेज टू 3, तो 10 रेज टू -23 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 रेज टू -20। सो नाउ व्हाट आई हैव इज, आई हैव 12 डिवाइडेड बाय 6022 इंटू 10 रेज टू -20। ओके, अब डिवाइड करना है 12 को, किससे डिवाइड करना है 12 को, सो क्या करेंगे इसको, 6
12 डिवाइडेड बाय 6022 अपॉन 1000, इनवर्स लेंगे इसका। अब इसको 12 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले मैंने क्या किया था, ये पावर सिंप्लीफाई कर दिया था, वो नहीं करना है। सिंपलर वे इज कि 12 इंटू 1000 इज 12,000 डिवाइडेड बाय 6022, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे। 12,000 डिवाइडेड बाय 2 6,000 एंड 6022 डिवाइडेड बाय 2 इज 3011। ओके, अब 6,000 को 3011 से डिवाइड करेंगे, आंसर मिलेगा 1.99। अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, कैलकुलेशंस मैन्युअली करनी है, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी भी, डू नॉट यूज कैलकुलेटर। तो आपका आंसर आ गया 1.99 इंटू 10⁻23। तो अगर हमने एक एटम लिया कार्बन का, देखो वो बहुत हल्का है, -23, मतलब इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू है ये। 1.99 इंटू 10⁻23। ओके, सो वी just a minute, we stop wait. We stop the class here.